السلام علیکم، ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زارا شفیع۔ ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسے کے لیے نئی درخواست۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ نے وکیل سلمان ابوذر نیازی کے توسط سے ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ارسلان رفیق بھٹی سے۔ جی بھٹی صاحب، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے 5 اکتوبر کو شام 5 بجے سے لے کر اور رات 11 بجے تک کی اجازت مانگی ہے کہ ان کو اس کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا جائے تاکہ وہ اپنا جلسہ کر سکیں، چونکہ ماضی میں انہوں نے شام 6 بجے تک مہلت مانگی تھی۔ آج اس مرتبہ انہوں نے کہا جی کہ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت بھی دیں، این او سی بھی دیں، اور ٹائم جو ہے وہ شام 5 سے رات 11 بجے رکھیں۔ 48 گھنٹے پہلے جو ہے وہ مینار پاکستان کی جو جگہ ہے وہ ان کے حوالے کی جائے تاکہ وہ انتظامات کو بر وقت یقینی بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے بھی اپلیکیشن جو ہے ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر میں پہنچا دی گئی ہے، لیکن اس پہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ کیا آیا جلسے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اس پہ باقاعدہ اجازت مانگ لی، اور پنڈی میں بھی جو ہے انہوں نے جو اجازت مانگی ہے اس کی تاریخ ابھی ان کا فائنل نہیں ہوا حتمی طور پر، وہ بھی آج ہے کہ آج شام کو وہ بھی سبمٹ کر دیا جائے گا، اس کو جمع کرا دیا جائے گا تاکہ وہاں پہ اجازت ملے، چونکہ میاں والی کا جو جلسہ تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کیا اس اتوار کو، تو اسی جگہ پہ وہ پنڈی کا جلسہ جو ہے اسی اتوار کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں 29 تاریخ کو۔ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں وہاں کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی اجازت دی جائے۔ جی، درخواست جمع کرا دی گئی ہے لیکن فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ارسلان رفیق بھٹی، لاہور بیورو چیف، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بلوچستان پولیس نے سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان صالح بھوٹانی کے گھر پر چھاپہ مارا ہے، جس پر حکومت سندھ نے بلوچستان حکومت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، مزید جان لیتے ہیں سجاد لاشاری سے۔ سجاد، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اور گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے کیا تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں بلوچستان پولیس کا کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان صالح بوتانی کے گھر پر چھاپے کا یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت سندھ کا چھاپے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بلوچستان حکومت سے سخت احتجاج بھی جو ہے وہ کیا ہے، اور احتجاج کے نتیجے میں جو ہے وہ خط بھی لکھا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے سیکرٹری داخلہ بلوچستان کو احتجاجی خط میں لکھا ہے کہ 22 ستمبر کی رات کو گزری کے تھانے کی حد میں صالح بوتانی کے گھر پر جو ہے وہ سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر بلوچستان پولیس نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے۔ مزید محکمہ داخلہ نے بتایا کہ بلوچستان کا پولیس کا یہ عمل جو ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی تھا۔ اس میں محکمہ داخلہ سندھ سے کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے۔ بلوچستان پولیس کا اس عمل پر جو ہے وہ حکومت سندھ کی سنجیدگی اور تحفظات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی چھاپے مار کارروائی میں ملوث جو کہ پولیس افسران اور جی اہلکار ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے۔ جی سجاد، بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی بلال چورنگی پٹرول پمپ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں باپ جاں بحق اور بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے کورنگی بلال چورنگی، جہاں پر پٹرول پمپ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور فائرنگ کی زد میں آ کر باپ موقع پر ہی جاں بحق جبکہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا پونچھ میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل کیا جائے گا۔ پوچھو لیبیا والوں سے، پوچھو شام والوں سے، جہاں جہاں افواج موجود نہیں تھیں وہاں پہ انسانیت کی تذلیل کا کون سا تماشا ہے جو دنیا نے نہیں دیکھا؟ یہ جو اپنی خاکی کو خون میں لہرا کر بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر گلگت تک مسلح افواج پاکستان کی خاکی پہنے ان سرحدوں پر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں میں۔ جبکہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں بھرپور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد اور نیلم ویلی میں ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ کشمیری مظاہرین نے سیاہ پرچم لہرا کر جعلی انتخابات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔
हर हाल में लेंगे आजादी, हर हाल में लेंगे आजादी। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात का ढोंग, मोदी सरकार के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में भरपूर एहतजाज, मुजफ्फराबाद में शहरों की कसीर तादाद में मुजाहरे में शिरकत। ढोंग इंतखाबात के खिलाफ धरने की क़यादत चेयरमैन पासवान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत मीर, हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंतखाबात नहीं इस्तिस्वाब चाहिए के नारे दर्ज थे। 2.5 करोड़ अवाम अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तौर पर राजशुमारी का मुतालबा करते हैं ताकि हम कश्मीरी अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी के साथ कर सकें। ढोंग इंतखाब को पूरी कश्मीरी कौम ने मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन इस बात का हल नहीं है, वो हमारे कश्मीर को इस वक्त 10 लाख भारतीय फौज पहरा दे रहे हैं। हुर्रियत की आदत को पाबंद सलासल करके दुनिया को ये बताना चाहता है कि कश्मीरी कौम हक की खुदरात जित नहीं बल्कि इलेक्शन चाहती है। वादी नीलम में जिला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था भारत मकबूजा कश्मीर में बंदूक के साए में इलेक्शन मुनक्किद करा रहा है। साथी रिपोर्टर राजा ब्रेस के साथ अरहम शेख, GTV न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर खास में मुबैना पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज खंबर की हलाकत और लाश की बेहुरमती केस में गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को ATC कोर्ट में पेश कर दिया गया है। ATC मीरपुर खास ने मुल्जिमान को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मकतूल डॉक्टर शाहनवाज खंबर हलाकत केस में 34 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जबकि सानिया मीरपुर खास में मतलूब 25 से ज़ायद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। गुजरांवाला की तहसील कामुनकी में बस ने 2 मोटरसाइकिलों सवारों को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक हादसा गलत समत से यू टर्न लेते हुए पेश आया। वाहकेंड में मेन GT रोड पर डंपर मुसाफिर वैन पर उलट गया। हादसे में वैन में सवार 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए, जबकि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बकरियां सड़क से क्यों नहीं हटाई? एबटाबाद में गरीब चरवाहे को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। चरवाहे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर नोटिस ले लिया गया है। थाना छांगला गली पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पतोकी में उबाश अफराद ने बस ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। ज़राए के मुताबिक उबाश अफराद तालिबात को हिरासा कर रहे थे। बस ड्राइवर के मना करने पर तशद्दुद शुरू कर दिया गया, जबकि पुलिस के पहुंचने तक मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। दुनिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम मुस्तहिक ख़वातीन के लिए वबाले जान बन गई है। चूनिया कम्युनिटी सेंटर में शदीद गर्मी के बायस कई ख़वातीन बेहोश हो गई हैं। रेस्क्यू रज़ाकारों ने ख़वातीन को तिब्बी इमदाद फराहम की। मौके पर मौजूद डिवाइस मुलाज़मीन गायब हो गए हैं, जबकि सेंटर में धक्कम पेल से ख़वातीन का बुरा हाल हो गया है। उधर गुजरांवाला में जालिम बाप ने नौजवान बेटी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 13 साला ज़ैनब को डंडे मार मार के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अशरफ ने 2 शादियां की थीं और दोनों बीवियों को तलाक दे चुका है। उधर मिंचनाबाद के नवाही इलाके मंडी सादिकगंज में इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल ले जाना बाप का जुर्म बन गया। शहरी के मुताबिक तेज़ बुखार में मुब्तला बच्चे का अस्पताल में कोई इलाज ही नहीं किया गया। लेडी डॉक्टर ने उसकी मिन्नत समाजत पर बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जबकि इंजेक्शन लगते ही बच्चा बेहोश हो गया। वाक़े के खिलाफ शहरी ने दीगर लोगों के साथ एहतजाज किया है। अस्पताल इंतज़ामिया ने उल्टा शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया है।
ननकाना साहिब के थाना सैयद वाला पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई देखने में आई है। 45 लाख रुपए से जायद के ट्रैक्टर चोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास के मुताबिक मुल्जिमान से मसरूक का ट्रैक्टर, नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। जूही में गाजी शाह थाने के एसएचओ के तशद्दुद से नौजवान की टांग टूट गई है। नौजवान और अहले खाना ML लेटर ना मिलने पर एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि एसएचओ ने 62 अफराद के कहने पर बेटे को लॉकअप करके तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। और फैसलाबाद में सीपीओ के नए क्राइम प्रिवेंशन प्लान के तहत एक्शन शुरू कर दिया गया है। थाना गुलबर्ग के इलाके मेट्रोपोल के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए हैं, जबकि हलाक डाकू की शनाख्त शमरोज के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। सिंध के बलाई जिला कनकोट में बेअमनी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया है। सियासी तंजीमें और सिविल सोसाइटी ने रैली निकालकर पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे नादिर अली शेख। जी नादिर। जी, कनकोट जिले भर में बढ़ती हो गया ताउन की वारदात और डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ कनकोट के सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से प्रेस क्लब से लेकर घंटाघर चौक तक जो एहतजाज रैली निकाली गई। हमारे साथ आज रैली के शिरका मौजूद है, मजदूर से जानते हैं कि इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। हम कनकोट इंतजामिया से, ज़िला भर के इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि फौजी ऑपरेशन और बेरहमाना ऑपरेशन किया जाए, वरना इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में हम एक ज़ोरदार तहरीक चलाएंगे, फिर आपको कहीं भी छुपने का जगह नहीं मिलेगा। आपने रैली की शिरकत के बाद उनका यही कहना है कि डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करके डाकुओं का खात्मा किया जाए ताकि हम शहरी जो सुकून की सांस ले सकें। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि क़स्सा हीर रांझा के खालिक और पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी दिन है। आज रात इश्क की दास्तान सुनने वालों के लिए सूफी नाइट का भी खास एहतमाम होगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। जी बिल्कुल, किस्सा हीर रांझा के खालिक हज़रत पीर सैयद वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन मज़ार शरीफ पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ अकीदतमंद इनसे बात करते हैं कि ये बाबा जी के हवाला से क्या कहते हैं। इनकी जो हीर रांझा है वो तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में इनका तज़किरा किया जाता है और उसमें जो उनके पहले इशारे हैं वही माशाल्लाह कमाल के हैं, जिसमें उन्होंने अल्लाह पाक और नबी पाक के सिफ़त बयान किया। और माशाल्लाह अकीदतमंदों की यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आकर लोगों का कीदा देखने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं पीर वारिस शाह साहब। जी बिल्कुल, रात भर हीर गायकी का मुकाबला हुआ और आज जो इस वक्त रस्साकशी और वॉलीबॉल का भी मुकाबला होगा और रात को सूफी नाइट का भी एहतमाम किया गया है। और इसके साथ अगर बात की जाए ज़ायरीन की, तो ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद है और आज रात को अकीदतमंद जो है वो सूफी नाइट भी सुनेंगे और इसके साथ जो लोग हैं वो ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं और नजर व नियाज का सिलसिला भी जारी है। जी, वोट लिए हैं तो अब इलाज भी कराएं। नौशहरा में डेंगू केसेस बढ़ने पर तहरीक इंसाफ के नायब सदर अस्पताल का दौरा करने पर मजबूर हो गए। सफदर हुसैन यूसुफजई ने काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशहरा में डेंगू मच्छरों ने पंजे गाड़ लिए। अस्पतालों में इलाज मुआवजे की नाकाफी सहूलियात की खबरों पर तहरीक इंसाफ के सूबाई नायब सदर को अस्पताल का दौरा करना पड़ गया। सफदर हुसैन यूसुफजई का कहना था सियासी जमातों की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। डेंगू से मुतासरा मरीजों ने अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया है। सियासी लोगों ने अस्पतालों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडे किए थे, आज जो विजिट मैंने किया, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, हमने मरीजों से पूछगछ भी की। माशाल्लाह यहाँ पर फैसिलिटीज तकरीबन हर किस्म की है। डॉक्टर साहब ज़्यादातर टाइम इन लोगों के साथ ही गुजारते हैं। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू वार्ड फॉल है। नहीं, हमारे पास तो पेट का कोई मसला नहीं। हमने 2 वार्ड को पिछले 2 हफ्ते पहले हमने डेंगू के वार्ड को हमने अलहदा कर दिया था, उनको हमने स्टाफ वगैरह दे दिया था। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास मेल और फीमेल दोनों तरफ बेड हैं। हम 30 बेड हमारे पास अवेलेबल है। 10-11 पे हमारे पास पेशेंट एडमिट हैं, उनको सारी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। उनके टेस्ट जो भी डेंगू का होता है वो हम रेगुलर उनको फ्री कर रहे हैं। डेंगू से मुतासरा मरीजों
बीमारियों का तमाम तर इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सूबाई सदर PTI का कहना था, सियासी जमातों के कायदीन अपनी सियासत अस्पतालों पर करने के बजाय हुकूमत का साथ देकर मसले का हल निकालने की कोशिश करें। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और सिंध में सैलाब आए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। सैलाब से सिंध के अक्सरियती शहर पानी में डूबे रहे हैं। हर तरफ तबाही के मनाज़िर आज भी देखे जा सकते हैं और इसके अलावा जो इंतज़ामिया है उनके कानों पर फ़िलहाल जून तक रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही है। पर ईदन में 2022 के सैलाब की तबाही के आसार आज भी मौजूद हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे शकीर आराइन। साल 2022 का माह सितंबर सितमगर साबित हुआ। कई दिन से जारी बारिश और बलूचिस्तान से आए सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। गांव गोट सफाए हस्ती से मिट गए। बारिश और तबाही के कई रिकॉर्ड टूट गए। हर इलाका और गांव दरिया का मंजर पेश करने लगा। टीम GTV ने जान की परवाह किए बगैर भरपूर कवरेज की। पड़ीदन का नवाही गाँव अली बख्श लाशारी सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। कोई सरकारी इदारा और NGO मदद को न पहुंची। यहाँ कोई भी मीडिया कोई भी कवरेज लेने को तैयार नहीं था। कोई GTV के नुमाइंदे हमारे पास आए। पानी में 10 फुट यहाँ पानी था। पानी में बैठ के पानी में इन्होंने कवरेज की हमारी। GTV की तवस्सुल से हमें बहुत रिलीफ मिला। इन लोगों ने जो कवरेज दिखाई, उसके बाद हमारे गांव में पानी भी निकासी करके गई और की गई और उसके बाद हमें राशन भी मिला और बाकी सहूलियात भी जो मैसर होनी थी वो भी हमें मिल गई। मुखय्यर हजरात की मदद से गांव, बस्तियां और शहर दोबारा से आबाद हुए, मगर अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कैमरा टीम के साथ शकील आराइन, GTV न्यूज़, पड़ीदन। सखर प्रेस क्लब के साबिक सदर और सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद अरशद गोंदल मरहूम के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस पे मरहूम सहाफ़ी की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे लाला शहबाज पठान। सखर प्रेस क्लब के अहदेदारों ने मरहूम सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद इरशाद गोंदल के हवाले से गुज़रे लम्हात, वाक़यात और मुशाहदात समेत सहाफ़ती क़लमी सलाहियतों पर रोशनी डाली। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब आसिफ ज़हीर खान लोधी, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर खालिद रांझा, नायब सदर सहरिश खोकर, फाइनेंस सेक्रेटरी लाला शहबाज पठान और दीगर का कहना था, मरहूम सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद इरशाद गोंदल ने माशरे के मज़लूम तबक़ात की आवाज़ और अवामी शिकायत को उजागर किया। चौधरी इरशाद साहब एक नहायत ही खुश अखलाक और मिलनसार तबीयत के मालिक थे। उनकी कमी को बहुत महसूस किया जाएगा। प्रोफेशनल नज़रियाती सहाफ़ी थे जिन्होंने कभी भी खबर के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। एक बहैसियत इदारा थे अपनी ज़ात में। वो चौधरी इरशाद की वफ़ात जो है सकर की सहाफ़त के लिए एक बड़ा खला पैदा हो गया, जिसको पुर करना बहुत बड़ा मुश्किल है। चौधरी इरशाद एक शफीक इंसान थे। हमारा तो बहुत पुराना उनसे वास्ता था जब उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ NNI से किया था। मुक़र्रीन ने लवाहिकीन से इज़हार अफसोस करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम चौधरी इरशाद गोंदल की मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात की बुलंदी करे। कैमरामैन तलहा खान के साथ लाला शहबाज पठान, GTV न्यूज़, सखर।